Assalamu alaikum students. So today we are going to start a chapter of cholinergic agonist in ANS pharmacology. Whenever we come to know about the term cholinergic, it is something related to acetylcholine. It may be either a cholinergic neuron or it may be a cholinergic receptor. While the agonists are the drugs that act on the receptor, occupy them, and then mimics the action of endogenous ligands. In this video, we are only going to discuss about cholinergic neurons. So, what are cholinergic neurons? These are the nerve endings which releases acetylcholine as a neurotransmitter. And where cholinergic neurons are located? As we have discussed in the previous video that the somatic nerve fibers innervating the skeletal muscles releases acetylcholine as a neurotransmitter. So these are included in cholinergic neurons, while the preganglionic nerve fibers and the postganglionic nerve fibers of the parasympathetic nervous system also releases acetylcholine. So these are also included in cholinergic neurons. And the preganglionic nerve fibers of the sympathetic nervous system and the sympathetic innervation of adrenal medulla, preganglionic nerve fibers are also cholinergic neurons. While the last one, postganglionic division of the sympathetic nervous system innervating the sweat glands, are also included in cholinergic neurons. The neurotransmission in cholinergic neurons include 6 steps. Number 1 is synthesis of acetylcholine. The next one is storage of acetylcholine. Then there comes the release of acetylcholine molecules into synaptic cleft and binding of acetylcholine molecules either to pre-synaptic receptors or to post-synaptic membrane receptors. Then degradation of acetylcholine molecules and then recycling of acetylcholine. The first step is synthesis of acetylcholine. The acetylcholine is formed by acetate and choline. The acetate is derived from acetyl coenzyme A molecule, and acetyl coenzyme A molecule is formed by the mitochondria present in exoplasm of the cholinergic neurons by two processes, which is pyruvate oxidation and fatty acid oxidation. And the next one required for the synthesis of acetylcholine is choline molecule. अब अगर हम कोलिन की बात करते हैं देन इट इज़ अ क्वाटर्नरी अमाइन. क्वाटर्नरी अमाइन इसके ऊपर 3 मतलब के मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं और सबसे बड़ी बात कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कोलिन इज़ प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विच मीन्स कि इट कैन नॉट एंटर द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, क्योंकि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर होती है एंड द लिपिड बाइलेयर डोंट अलाउ द पोलर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट. तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है विच इज़ एनर्जी डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, and it aims for the transport of choline from extracellular matrix into the exoplasm of the cholinergic neurons. It is the rate limiting step. अब ये ट्रांसपोर्ट होती किस तरह से? Now choline is to be transported into the exoplasm by the process of active transport. यहाँ पे active transport की टाइप इन्वॉल्व होती है which is co-transport. Co-transport एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक ऐसी टाइप है विच इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ 2 molecules into the cell in सेम डायरेक्शन और इन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है. तो इस केस में कोलिन और सोडियम की को ट्रांसपोर्ट होती है इनटू द एक्सोप्लाज्म. अब यहाँ पे जो है जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एसीटेट रिक्वायर्ड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड एसीटेट इज obtained from acetyl coenzyme A, and acetyl coenzyme A is synthesized by mitochondria of exoplasm. तो पहले से ही अंदर मौजूद होगा. As a result, acetate and choline combine to form acetylcholine. और यहाँ पे एक enzyme ऐड होता है which is involved in the synthesis of acetylcholine, which is choline acetyl transferase.
ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलिन इनटू द एक्सोप्लाज्म एक रेट लिमिटिंग स्टेप है, एंड दिस इज इनहिबिटेड बाय अ ड्रग विच इज नोन एज हेमिकोलिनियम. Now moving towards the next step, which is storage of acetylcholine molecules into the exoplasm. So acetylcholine is stored in the form of vesicles. Vesicles क्या होते हैं? These are fluid filled sacs. So न्यूरोट्रांसमीटर भी तो एक तरह का फ्लूइड ही है. So molecules of acetylcholine जो है जब वो अंदर synthesize हो जाते हैं, these are enclosed by a specific membrane bound sac which are vesicles. And this is also an energy dependent process which is an active transport, and this process is coupled by the efflux of positive ions, protons या H+ ions. अब स्टोर तो हो गई एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल, जिसमें एसिटाइलकोलिन यहाँ पे प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर्स. इसके अलावा यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स में कुछ और भी मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे विच में इधर इंक्रीज और डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर विच इज़ एसिटाइलकोलिन इन दिस केस. और इस तरह के मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन एडिशन टू प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर इनटू साइनेप्टिक वेसिकल्स, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं को ट्रांसपोर्टर्स. अब यहाँ पे जो हमारे पास को ट्रांसपोर्टर्स हैं, दीज आर ATP एंड दीज आर प्रोटियोग्लाइकेन्स. नाउ अब जो एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो साइनेप्टिक वेसिकल्स में मौजूद होते हैं ऑन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑन द नर्व एंडिंग, दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स. और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेरिकोस्टीज. अब एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स एक्सोप्लाज्म ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में स्टोर तो हो गए, लेकिन अब ये रिलीज़ किस तरह के होंगे? तो ये उस वक्त तक रिलीज़ नहीं होंगे जब तक कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में किसी टाइप का एक्शन पोटेंशियल फायर नहीं होता. जब एक्शन पोटेंशियल फायर होगा then it would cause the opening of voltage gated या voltage sensitive sodium channels which results in the influx of sodium ions. Sodiums बाहर से अंदर आएगा and it would cause increase in the positivity inside the neuron which results in depolarization of neurons. अब जब न्यूरॉन की डीपोलराइजेशन होगी, it would cause the opening of voltage sensitive calcium channels. ठीक है, जब कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे तो कैल्शियम जो है फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इनटू द न्यूरॉन आएगा. जब इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम हो जाएगा, अब कैल्शियम इज़ अ बेसिक आयन जो मतलब कि साइनेप्टिक वेसिकल में से प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करने में अपना रोल प्ले करेगा. कैल्शियम आयंस अब अंदर आ चुके हैं एंड कॉजेज द फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे साइनेप्टिक वेसिकल्स की फ्यूजन हो गई. अब क्या होगा? यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होगी एंड एक्सोसाइटोसिस विद रिजल्ट इन द एम्पनिंग ऑफ द साइनेप्टिक वेसिकल एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. अब ये वो पॉइंट है कि जब साइनेप्टिक वेसिकल्स जो है वो फ्यूज़ होंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस, एंड वुड कॉज द एम्पटिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स विच आर एसिटाइलकोलिन फ्रॉम साइनेप्टिक वेसिकल्स इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. हैंस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में हमारे एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स अब आ चुके हैं. अब एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स ने साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आकर अपना रोल प्ले करना है विच इज़ बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू बेसिक वेरियस रिसेप्टर्स. यहाँ पे दो तरह की बाइंडिंग होगी. ये भी पॉसिबल है कि एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे बाइंड कर जाएं, ठीक है, या ये भी पॉसिबल है कि आपके एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाए. अब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स हैं वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे, और हम बारहा ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं. इट मे बी इधर निकोटिनिक रिसेप्टर और इट मे बी इधर मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स. गैंग्लियन पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जबकि इफेक्टर ऑर्गन अगर यहाँ पर होगी तो वहाँ पे मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं.
अब एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स जब रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे विद द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ऑन द इफेक्टर ऑर्गन, इट वुड रिजल्ट इन द इनिशिएशन ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंडिंग के बाद किस तरह के प्रोसेसेस होंगे? इट में कॉज द एक्टिवेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। जब सेकेंड मैसेंजर सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, इट वुड रिजल्ट इन एन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे which includes phosphorylation or dephosphorylation या activation and inactivation of various enzymes involved in various biological processes। या फिर अगर यहाँ पे जो है दूसरा जो है नर्व एंडिंग वुड बी एक्टिंग एज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इट वुड कॉज द इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स का भी यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा, वो अल्फ़ा-2 रिसेप्टर्स होते हैं जो हम आगे जाके इन्हीं चैप्टर्स में पढ़ेंगे, एएनएस फार्माकोलॉजी के चैप्टर्स में, कि वो अल्फ़ा-2 रिसेप्टर्स होते हैं। उनका बेसिक फंक्शन ये होता है टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन या प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स। अब एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ भी हो गए, इनकी बाइंडिंग भी हो गई, इन्होंने अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर लिया जो इन्होंने करना था। अब इनके डिग्रेडेशन का टाइम आ जाता है और यहाँ पे जो है रोल आएगा एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम का। ये एक स्पेसिफिक एंजाइम है विच कॉजेज द डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन इनटू कोलिन मॉलिक्यूल एंड एसीटेट। अब यहीं से ही हमारी डिग्रेडेशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया। और डिग्रेडेशन का प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों होता है? टू चेक एंड बैलेंस द एक्टिविटी ऑफ एसिटाइलकोलिन, क्योंकि अगर एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज नहीं होगा टू डिग्रेड द एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स, तो सारे के सारे एसिटाइलकोलिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट वुड एक्ट ऑन द इफेक्टर ऑर्गन which would result in the generation of excessive biological activity। तो एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स के जो एक्शन है उस पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज का होना बहुत ज़रूरी है। एक बात यहाँ पे रह गई कि दो तरह की ड्रग्स होती हैं। एक होती है बोtulinum टॉक्सिन जो इनहिबिट करती है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम सिनेप्टिक वेसिकल्स, जबकि जो दूसरी वाली ड्रग होती है स्पाइडर विडो टॉक्सिन, इट कॉजेज द कंप्लीट emptying of all the molecules of acetylcholine from synaptic vesicles into synaptic cleft। अब हम लास्ट चीज़ की तरफ आ जाते हैं कि जनरेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एसिटाइलकोलिन डिग्रेड भी हो गया, यूज़ भी हो गया, उसने जो एक्शन परफॉर्म कर लिया तो वो भी कर लिया। अब एसिटाइलकोलिन ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं उनको तो दोबारा से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एसिटाइलकोलिन की ज़रूरत है, तो फिर वो कैसे दोबारा सिंथेसाइज होगा? तो यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन हुई थी, यहाँ से निकलेगा कोलिन मॉलिक्यूल, इट वुड एंटर इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में निकल जाएगा, इट कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ सोडियम एंड कोलिन को ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इनटू द एक्सोप्लाज्म। फिर वही कोलिन अंदर आ जाएगा और यहाँ पे एक्सोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया तो मौजूद थे, जो एसिटाइल को एंजाइम ए को जनरेट करवा के उसे एसीटेट प्रोड्यूस करवा के दोबारा से एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल रीजनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे रिसाइकलिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स भी हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, the synthesis of acetylcholine in them, and then neurotransmission in cholinergic neurons. Hope you understood well. Thanks for watching.